الصائم الحالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک مرتبہ ہم اور آپ پھر اللہ کے محبوبوں کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں۔ آج جانتے کہ ہماری یہ چھٹی محفل کئی نسبتوں کی طرف منسوب ہے، چونکہ الحمدللہ ہر چھٹی شریف کو ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے محسن جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، کلمہ نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنے، اس کے محبوب کی غلامی ملے، سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ایک نسبت یہ بھی ہے اور دوسری یہ کہ آج انشاءاللہ ان کے آباء و اجداد حضرت مولائے کائنات علیہ مرتضیٰ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اس کا سننا نہیں بلکہ میرا سننا ہوتا ہے۔ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا اب اس اللہ کے ولی کا دیکھنا نہیں بلکہ وہ میرا دیکھنا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ بَطَشَهُ الَّذِي، فرمایا اس کا پکڑنا نہیں میرا پکڑنا ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ بیٹھے ہوں وہاں آج میرے معلّہ میں، لیکن یہاں سے اگر کوئی پکارے یا غریب نواز تو وہاں سے میرے غریب نواز مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے، سمجھے نا؟ اتنی طاقت کی چاہیں نا تو آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے نا اس تقدیر کو بھی لوح محفوظ سے مٹا دیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے خلیفہ خاص سے جن کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھا، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے اعلیٰ خلیفہ اور سب سے خاص خلیفہ تھے اور آپ سے مرید بھی تھے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو اس موقع انتقال ہونے کے وقت بہت سارے لوگ جمع ہو گئے
क्योंकि अल्लाह वालों को ये पता चल जाता है कि मेरी रूह कब कब्ज़ होने वाली है। अल्लाह ताला ये अपने महबूबों की इतनी ताकत देता है। अब आप सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए कि हमें कब मरना है, किसी को पता नहीं, तो पता होता है। अल्लाह ताला उन्हें ये इल्म अता फरमाता है। आप ये पता की बात करते हो, वो कबीले कुर्त के जो बुज़ुर्ग थे ना, उनका इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा लेके लोग जा रहे थे, लाखों का मजमा था। एक यहूदन औरत क्या कहने लगी किसका जनाजा लेके जा रहे, इतनी भीड़ है, अपने दरवाजे से बाहर निकली। तो बताया कि फ़ला जो अल्लाह के वली थे आज उनका इंतकाल हो गया। तो यहूदन औरत क्या कहती, कहा ये अल्लाह के वली थे। कहा अगर अल्लाह के वली थे ना तो इनको यहाँ मंगल को नहीं जुमा के दिन मरना चाहिए था। इनको मंगल के दिन नहीं जुमा के दिन मरना चाहिए। जुमा बड़ा अच्छा दिन है मुसलमानों को। जैसे ही वहाँ पहुँचे ना, हजरत वो जो बुजुर्ग थे कबीले कुर्त के, वो उठ के बैठ गए और मुरीदीन को कहते वापस ले चलो, अब मैं आज नहीं जुमा के दिन मैं मरूंगा। ये अल्लाह ताला अपने महबूबों को ये ताकत देता है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा का जब साल का वक्त आया तो सारे लोग इकट्ठा थे। वहाँ एक बंदा था जो कफन चोरी करता था, समझे ना, कफन चुराया करता था। वो पहुंच गया, आपने अपने जेब में हाथ डाला और उससे उस ज़माने के एतबार से जो भी पैसा चलता था उसे 10 रुपये दिया, समझ लो जो भी चलता था 10 पैसा या जो भी समझ दिया ना। कहा देख तूने बहुत कफन चोरी की लेकिन मेरा कफन नहीं चोरी करना। उसने कहा हजरत मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ, आपकी बारगाह में तौबा, मैं चोरी नहीं करूँगा। चोरी छोड़ दिया। कहा नहीं फिर भी ये 10 दिरहम या 5 दिरहम जो भी दिया पैसा उस ज़माने दिया। कहा रख। कहा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं चोरी नहीं करूँगा। अब तीसरे दिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया। सारे लोग जनाजे में शरीक हुए, जो चोरी करता था वो भी शामिल हो, सारे लोग शामिल हो, सारी नमाज जनाजा पढ़ी और आपको दफना दिया गया। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, इंसान के अंदर अगर 3 आदतें पड़ जाएं तो बंदा वो छोड़ता नहीं। एक झूठ बोलने की, एक चोरी की आदत, एक और आदत, समझे ना। तो कहा अगर ये आदत पड़ जाए तो इंसान की आदतें नहीं छूटती। अब वो जो बंदा था ना, देखा रात का वक्त हुआ ना, सोचने लगा यार पीर साहब का कफन था यार, बड़ा महंगा होगा, समझे ना, छोड़ना नहीं चाहिए। पीर साहब का कफन था, बड़ा अच्छा होगा, ऐसे तो गहरा गहरा इंतकाल, उनका कफन लाता तो पीर साहब है यार, चलो ना कौन देखता है। अब ये सीधा कब्रिस्तान पहुँचे, जाकर के कब्र को खोदा ना तो उसमें खूब तेज़ से खुशबू आ रही थी, खूब तेज़ खुशबू आ रही थी। और आए भी क्यों ना, इसलिए कि वो मोमिन थे और मोमिनों में आला क्वालिटी वाले थे। आपकी कब्र में मेरे आका तशरीफ़ लाए थे, समझे ना। अब इसके बाद इसने क्या किया, सारा हटाया ना, और हटाने के बाद कफन खोला और कफन खींचने लगा ना, तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कहते नबी मरकर मिट्टी मिल गए या नबी के गुलाम जिंदा हैं, समझे ना, समझे ना। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, समझे ना। पकड़ लिया, कहा एक जन्नती होकर जन्नती का कफन चोरी कर रहा है, एक जन्नती होकर के जन्नती का कफन चोरी कर रहा है। कहा हुजूर मैं चोर आदमी, गुनहगार आदमी, मैं कहाँ से जन्नती, मैं कहाँ से जन्नती। कहा आपके मना करने के बाद, आपसे वादा करने के बाद फिर भी आया कफन को चोरी करने के लिए, मैं कैसे जन्नती हो गया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते जा दिल्ली शहर के अंदर ऐलान कर दे, कल जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जन्नती बना दिया है। और कहा तू भी जनाजे में शरीक हुआ था, लिहाजा जा तू भी जन्नती बन गया। अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अगर जनाजा पढ़े वो इंसान जन्नती बन जाए, अरे ये गुलामाने हुसैन यहाँ 10 दिन आकर के शामिल हो, ये क्यों ना जन्नती बन जाएंगे। ये महफिलें हमें क्या करेंगी, जन्नत में ले जाने का बनेगी ना, बेदार है ना। अब आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अए बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, अनीसी बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा,
आमना के लाल रुखिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में जी लगाकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। पढ़े सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयद आलम शफी आदम रहमत आलम जानी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कल मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हो करके कल क़यामत के दिन उससे मुसाफहा करूँगा। आप सोचो, एक इंसान दुनिया के लीडर से अगर हाथ मिला लेना तो उसका फ़ोटो बनवाता कि मैंने फ़लाँ से हाथ मिलाया। ये कोई दुनिया के लीडर नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया व आखिरत का बादशाह और दुनिया व आखिरत का मालिक बनाया है। और फिर अगर बंदा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हाथ मिलाता ना, उस सहाबे कराम हाथ मिलाते ना तो कहते दिन भर हमारा हाथ खुशबुओं से महकता रहता। अब वो भी क़यामत के दिन। यहाँ जो पीर साहब है ना, वो भी काम नहीं आएंगे वहाँ पे, समझे ना आप, ना जाने जिनके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन ये दरूद मुबारक का ऐसा पाकीज़ा अमल है कि बंदा करेगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसाफा फरमाएंगे। फ़ायदा क्या होगा? तुम जन्नती बन जाओगे। अब आप कहोगे यार मौलाना आप भी जन्नती की क्या रट लगाए रखे हैं, समझे ना, कि जन्नत का टिकट आप बांट रहे हो, जन्नत का टिकट बांट रहे हो। मैं कहाँ बांट रहा हूँ? मालिक की जन्नत तो वही है ना। मालिक की जन्नत कौन है? शायर कहते ना कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला, यानी फिरदौस से आला यानी जन्नत। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला, बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। खुदा बनाया ना, बसा कौन रहा है? हुजूर। और फरमाया फिर क्या कहते, तमाशा तो देखो कि आतिशे दोज़ख, तमाशा तो देखो कि आतिशे दोज़ख यानी जहन्नम की आग का लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। समझे ना, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो अब आप कहेंगे यार ये जन्नत की आप क्या रट लगाए हैं? तो बुखारी के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनके पास एक दस्तरखान था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके घर पे तशरीफ़ लाए और इसके बाद अपने हाथों को उसी दस्तरखान में पोंछ लिया। इसके बाद हज़रत अनस कहते हैं उसके बाद से मैंने कभी उस दस्तरखान को न धुला। जब भी वो दस्तरखान गंदा होता उसे उठा करके आग में डाल देता, मैल जल जाता, वो कपड़ा उसी तरह रह जाता था। अगर आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की चंद उंगलियां जिस कपड़े में लग जाए वो आग से महफूज हो जाए। अरे जिस गुलाम मुस्तफ़ा को आका से मुसाफा का मौका मिल जाए वो जहन्नम से क्यों ना महफूज हो जाएगा। तो एक मरतबा और जी लगा कर बाबा से बुलंद पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। शायर कहता है नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। मिलती है कि नहीं मिलती? कहा जब बेचैनी हो ना दरूद पढ़ो दिल अपने आप में आ जाएगा, समझे ना। वैसे तो हम लोग दीवाने लोग हैं ना, जब कहीं से नहीं मिलती सुखों की दौलत तेरे दीवाने तेरी महफिल सजा लेते हैं। तो कहा शायर ने, कहा नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है।
और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। बनाकर कासिमी नेमत बता दिया रब ने, बड़ा बड़े को बड़ा कमाल देता है, बड़ा बड़े को बड़ा कमाल देता है। और शाह मर्दा शेर अज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और कहा तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कहा क्या बात है रजा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा। इसलिए कि आज अहले बैत तहार का तज़किरा करना है जिनकी मोहब्बत जन्नत की जमानत है। आप कहेंगे ये कैसे आपने कहा, इस पर भी हदीस पेश करता हूं, बोलो। आप ये ना कहना कि मौलाना यार हवा में तीर मारते चले जाते हैं, उस पर दलील अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तभी आपको बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, समझे ना। ये नहीं कि मैं दूसरे मुकर्रिरों की तरह हवा में बात नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ जो बात करूँ मेरे पास हवाला हो, समझे ना। एक दिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, इधर मौला अली बैठे, इधर फातिमतुज़ ज़हरा बैठी, एक गोद पर हसन एक गोद पर हुसैन। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली एक मज़े की बात बताऊं। अर्ज़ किया हुजूर बताए। कहा जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हैं ना, जन्नत में भी एक महल होगा, उस महल में हम भी इसी तरह बैठे होंगे, हम जन्नत में इसी तरह वहाँ भी बैठे होंगे। कहा इससे और मज़ीद बात मज़े की बताओ। कहा क्या? कहा ऐ अली ऐ फातिमा ऐ हसन हुसैन, जो तुमसे मोहब्बत करेगा, जो हमसे मोहब्बत करेगा, उसी महल के करीब में उसका भी महल होगा। पता चला। और फिर हुजूर ने भी फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अहले बैत से मोहब्बत करते हो, इस वजह से सुभान अल्लाह बोलना कि आज वो जो अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, वो देखे कि मेरे गुलाम हमारे नाम पे किस तरह सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। तो क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम, और जिसके आंचल को ना देखा महरुमा ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल और एहसान है कि एक मरतबा हम फिर उसके महबूबों की याद, उसके महबूबों की महफिल सजाने के लिए यहाँ जमा है। आज की हमारी महफिल अक़लीम विलायत के शहंशाह, इबादत और रियासत के में मुसलमानों के पेशवा, जंग खैबर के शहसवार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, जिनके निकाह में उस नबी की बेटी आई जिसके बारे में कहा गया कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुनादी निदा देगा, ऐ महशर वालों अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की बेटी का गुजर हो रहा है। वो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मजमुउज़ ज़वाइद की रिवायत है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन व जअल ज़ुर्रियत फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की औलाद को उसकी पुष्ट में रखा है, लेकिन मेरी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने अली की पुष्ट में रखा है। वो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, आप देखिए आपकी ज़िंदगी का जब आप मुताला करेंगे, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा आपकी विलादत अल्लाह के घर में होती है। यहाँ पर रुक कर एक बात बता दूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का निकाह हज़रत फ़ातिमा से ही क्यों हुआ। इसमें शारहीन हदीस ने एक बड़ा अजीब नुक्ता बयान फरमाया है। वो फरमाते जब लड़का और लड़की का रिश्ता हो, लड़का और लड़की का रिश्ता हो, तो लड़का वाला जो है ना लड़की से थोड़ा कुफू के एतबार से, माल के एतबार से थोड़ा ऊंचा हो, ताकि कभी भी लड़का अगर नीचा होगा तो लड़की वाले के सामने झुकना पड़ सकता है, लड़की वाले के सामने इज्जो इनकिसारी करना पड़ सकता है। लिहाजा कुफू का लिहाज किया जाए कि लड़का वाला कुफू में ज़्यादा ऊंचा हो, उसके यहाँ निकाह किया जाए। तो कहा अब जाहिर सी बात है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का निकाह फातिमा से कैसे हो सकता है, इसलिए कि
उसका अली का निकाह कहाँ होगा? जो अल्लाह के घर में पैदा हो उसका निकाह उसके यहाँ होगा जो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई, उसके यहाँ होगा जो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। हजरत मौला ए कायनात काबे में पैदा हुए, अल्लाह अकबर, काबे में पैदा हुए। हजरत आपकी वालिदा जो फातिमा बिन्त असद थी, आप तवाफ़े काबा कर रही थी, जैसे दर्द जी उठा, कहा अल्लाह यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरी लाज रख ले। अभी चूंकि वो कभी कुफ्र ना की थी, जैसे ही अपने हाथों को उठाया फौरन ही खाने काबा का दरवाजा खुला। हजरत फातिमा बिन्त असद हजरत अली की वालिदा अंदर गई, वहां पर विलादत हो गई। अब इसके बाद हजरत अली को उनके घर वाले अपनी गोदों में लेते हैं, जनाबे अबू तालिब लेते हैं, दीगर रिश्तेदार लेते हैं, कहते बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बच्चा हसीनो जमील है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बच्चे की आंखों में रोशनी नहीं है, बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। सारे लोग एक एक करके लेते जा रहे हैं, यहाँ तक कि आखिर में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने गोद में लिया, फौरन ही मौलाए कायनात ने अपनी आंखों को खोल दिया है। बाद में हजरत अली से पूछा गया, अरे अली आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? हजरत अली कहते हैं मेरा ये ख्याल था, मैं ये सोचा था दुनिया में आया हूं, अगर सबसे पहले किसी चेहरे को देखूंगा वो चेहरे मुस्तफा को देखूंगा। आप सोचें कि यार अली को इतने बचपन में सब पता था। क्योंकि आप लोग बड़े होशियार लोग हैं ना, बहुत अकल वाले लोग हैं ना, तो सोचने लगे यार अली को पता था। अरे हजरत अबू बकर को आलम अरवा में पता हो सकता है, तो बाबुल इल्म को क्या दुनिया में आने के बाद नहीं पता चल सकता है? लिहाजा अपना दिमाग नहीं चलाने को, समझे ना। हमारे बच्चे तो बड़े हो जाते किसी लायक नहीं होते हैं। ये इसी ख़ानदान के बच्चे हजरत हसन और हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह में भी 2 साल की उम्र, वहाँ पर मदीने मस्जिद नबी में कुछ सदक़े की खजूरें रखी थी, समझे ना, सदक़े की खजूरें रखी थी, और हजरत हसन ने एक खा लिया, समझे ना, खाया ना भी हलक में थी, आका अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, मुंह में उंगली डाली, निकाल दिया। कहा है बेटा हसन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सदक़े की खजूरें हैं और अल्लाह ताला ने औलाद रसूल पर उसे हराम करार दिया है। हजरत हसन ने फ़ौरन फेंक दिया। कहा ये हजरत हसन से निकलवाना मतलब नहीं था, बल्कि हजरत हसन को दीन सिखा रहे थे। तो बहरहाल ये कोई अकल अपनी ना दौड़ा है कि अली क्या कर रहे, अली को पता था क्या? अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, समझे ना, ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए, क्या हुआ? पैदा हुए, दुनिया के अंदर आए। जब आए दुनिया के अंदर तो चूंकि आपकी वालिदा के आपका कोई बाप तो है नहीं, से 3 लम्हे में फूक मारा, हमल से विलादत 3 लम्हे हो गए, समझे ना, बस 3 लम्हे हो गई। अब डर गई हजरत मरियम कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अल्लाह ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ना करना बल्कि इस तरह इशारा कर देना। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के जब उनकी वालिदा मरियम हजरत मरियम गई कौम के पास, तो कहा ये कहाँ से लाई? तेरा तो शौहर नहीं, कहाँ से लाई? आपने इशारा किया, कहा ये आज बच्चा पैदा, क्या जवाब देगा? कुरान में अल्फाज जिक्र हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। अब देखो बात निकाले तो और चली जाती है बात। अब यहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक दिन के हुए पता चला मैं नबी हूँ, कौन हूँ? और ये जो डबल दर्जन वाले खन्नास है ना, उनका मुल्ला लिखता है, कहता है कि नबी को 40 साल तक पता ही नहीं था कि मैं नबी। अब आप सोचे वो ईमान वाला हो सकता है? हमें डरते क्यों यार, समझे ना। ईमान में पुख्ता बनो, अभी आगे चल की बात और अर्ज करूंगा, ईमान में पुख्ता बनो तब जा करके। हजरत अली की बात याद और भी आ रही, लेकिन अभी इस पर नहीं, और बाकी आगे चलता हूँ। बहरहाल तो हजरत ये ना कोई समझे कि हजरत अली पैदा हुए ने पता चल गया कि मैं चेहरे मुस्तफ़ा को देखना, चेहरे मुस्तफ़ा को सबसे पहले देख। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप देखिए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की परवरिश में रहे। शॉर्ट में बताता हूँ कि हजरत जनाब अबू तालिब के पास चूँकि बच्चे ज़्यादा थे, तो एक दिन अपने चचा अब्बास को कहा एक बच्चा आप ले ले, एक बच्चा मैं ले लूँ। तो हजरत जाफ़र तैयार को उन्होंने परवरिश किया और हजरत अली की आका अलैहिस्सलाम के घर में परवरिश। अब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया,
जवाब जबल वहां फारान की चोटी पर चढ़े और कहा, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। पहले अपने आप को मनवाया, समझे ना। पहले कहा कि तुम मुझे कैसा पाते हो? सबने कहा आप सादिकुल अमीन हैं, सच्चे हैं, सारी चीज़ें कहा। यहीं से पता चला इंसान अगर तबलीग करना चाहता है पहले अपने आप को मनवाए फिर बात को मनवाए। यहाँ होता है कि हम अपने आप को मनवाते नहीं, बात मनवाने चल देते हैं, समझे ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अपने रब से सीखा और 23 साल में दुनिया को सिखा दिया, समझे ना। लेकिन यहाँ हम यसन्नल कुरान सीख करके सिखाने निकल जाते हैं। हाल ये होता, 2 मसला सीखे, पगड़ी बांधे और चलो 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 भाई सिखाने। क्यों? दावत खाने को मिलेगा, ये खाने को मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम 40 साल तक रब से सीखा, पहले सीखो फिर सिखाने निकलो। तो फारान की चोटी पर आका अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। अरब के बड़े बड़े लोग तो सारे चले गए, लेकिन वहीं 9 साल या 8 साल की उम्र जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला की थी। आप पंजों केवल खड़े होते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबने भले इनकार कर दिया, लेकिन अली कहता है अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के पैगंबर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर थे, समझे ना। बड़े बड़े शोरमाओं को गज़वे बद्र के अंदर काट के रख दिया, गज़वे उहद के अंदर बड़े बड़े शोरमाओं को काट करके रख दिया। आपको पता ही है ना, खैबर के अंदर आप देखो क्या हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सिर्फ एक जंग है जिसे जंगे मोता कहा जाता है, जंगे तबूक कहा जाता है। उस जंग के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ना ले गए, बाकी सारे गज़वात में, सारी जंगों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला शामिल लेते। आपको फातह खैबर का, खैबर का किला बड़ा मजबूत था, मुसलमानों ने उसे घेर रखा और 15 दिन से जायद या तकरीबन माह हो रहे थे, वो खैबर किला इतना मजबूत था, फतह ही नहीं हो रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस इंसान के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतह को मुकद्दर की। अब हजरत अबू बकर सोच रहे मैं होऊंगा, उमर सोच रहे मैं, उस्मान सोच रहे मैं, तलहा सोच रहे मैं, अब्दुर्रहमान मैं, जुबैर मैं, ये सारे सोच रहे कि हम मुझे मिले, मुझे मिले। लेकिन जब सुबह होती आका इरशाद फरमाते हैं, अयना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है, अली कहाँ है? बताया गया आपकी आंखों में आशोब चश्म हो गया, आंख आई है, आपकी आंखों में परेशानियां हैं, आंख खुलती नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, ये ने कहा कि ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आका ने लुआब निकाला, आंखों से लगाया, आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई। ये है, यही तो नबी का कमाल है, समझे ना। नबी का कमाल यही समझो। अल्लाह, मेरा इमाम कहता ना, वही रब है जिसने तुझे हम वतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। कहा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सर से लेकर पैर तक सरापा करम बनाया है। अगर आका का एक बाल मिल जाए, पानी में डाल के पी लो, कैसी भी बीमारी हो शिफा मिल जाएगी। ये सरापा करम बनाया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला झंडा लिया, निकल गए। जो खैबर का किला इतने दिनों से फतह नहीं हो रहा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बाएं हाथ से पकड़ा और उसे हिलाया ना, फौरन हिला के खींचा ना, तो वो जो दरवाज़ा था खैबर का उखड़ गया और इसके बाद वो किला फतह हो जाता है। सहाबा किराम कहते हैं बाद में हमने देखा वो खैबर का किला इतना मजबूत था, दरवाज़ा ना, कहा हमसे 2-4 नहीं बल्कि 70 लोगों ने उठाया, तब जाकर के उठा था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उस ज़ात का नाम है। आपके किस किस पहलू पर आप नज़र डालें, आपके इल्म का कोई जवाब नहीं, आपके इल्म का कोई जवाब है ही नहीं। जब मेरे आका फरमा दे कि ना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर वाली उसके दरवाजे हैं। हज़रत अली ने एक दिन कहा, मिंबर पर बैठेगा, पूछो जो पूछना है मुझसे, क़यामत तक जो पूछना है पूछ लो, सारी चीज़ों को बता दूंगा। हज़रत अली सारी चीज़ों को बता रहे, ये है, ये है, ये पूछा, ऐसा वो है, सारी चीज़ें। एक बंदा कहने लगा, अली ये बताओ तुम्हें इतना इल्म आया कहाँ से, ये इल्म आया कहाँ से, इतना सारा इल्म, सारी चीज़ें बताते चले जा रहे, इल्म आया कहाँ से? हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं, मैंने जब आका को गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आपकी आबरूए मुबारक पर एक पानी का कतरा था, मैंने सोचा नीचे ना गिराऊं, उसे मैंने चूस लिया। उस चूसने की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने में इल्म का समंदर उड़ेल दिया है।
और फिर हाल क्या है? हज़रत अली कहते हैं अगर मैं सिर्फ सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ की अगर तफसीर लिखूँ ना तो 70 या 200 ऊँट का बोझ बन जाएगा, यानी इतनी किताबें लिख डालेंगे, समझे ना। वो हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के इल्म का जायज़ा ले किस किस पहलू पर आप रोशनी डालें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ज़माने में एक औरत का केस ऐसा आया, वो औरत जो थी ना 6 माह में ही बच्चा दे दी। सारे लोग कहने लगे ये कैसे होगा, ये कैसे, कहा ज़िना किया, ज़िना किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसको रज्म कर दिया जाए, इस पर पत्थर बरसाया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसने ज़िना किया है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा, ऐ उमर क्या कुरान की इस आयत को नहीं पढ़ते हो? कुरान की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 36 माह यानी 30 माह, अगर इससे मैंने 30 माह यानी 2 से 2.5 साल के बीच में औरतें अपने बच्चे को दूध छुड़ा दें, कहा अगर चाहे आखिर से आखिर 2.5 साल तक पिला सकती, इसके बाद 6 माह बच्चे हैं। तो कुरान की रोशनी से ये पता चला कि अगर बच्चा औरत अगर 6 माह में अगर उसके पेट में है तो बच्चा जन सकती है, बच्चा हो सकता है। तो कहा ये बच्चा ज़िना करे बल्कि हक है। तो हज़रत उमर कहते हैं लौला का अली हलाक उमर, अगर आज अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। और आज साइंस तहकीक कर रही कि अगर बच्चा 6 माह में पैदा हो जाए तब भी वो जिंदा रह सकता है, और दुनिया के अंदर बहुत सारे बच्चे आज जिंदा रहते हैं। तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर है। एक मरतबा 3 यहूदी आए। अब वो तीनों यहूदी आने के बाद कहते हैं, ए उमर अगर आप हमारे 3-4 सवालों का जवाब दे दो तो हम मुसलमान हो जाएंगे। कहा ठीक है पूछो। कहा ये बताओ आसमान का ताला क्या है? आसमान का ताला क्या है? कुफ्र। कहा ये बताओ आसमान की चाबी क्या है? कहा ये बताओ कि कौन सी ऐसी कब्र है जो अपने अंदर दफन होने वाले इंसान को लिए लिए घूमती रहे? कहा ये बताओ 5 वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माँ के पेट से पैदा रहे लेकिन फिर भी जमीन पर चलते रहे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश, कोई जवाब ना दिया। वो तानन कहने लगे यहूदी, इसीलिए तो हम कहते मज़हब इस्लाम झूठा मज़हब है, मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं। हजरत उमर खामोश। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला दौड़े दौड़े अली के पास पहुंचे, कहा अली चलो आज तुम्हारी ज़रूरत है, इस्लाम पर आँच आ चुकी है, चल के उस सवालों का जवाब दे दो। कहा क्या बात है? कहा चलो तो मेरे साथ। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की बारगाह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पहुँचे, हज़रत उमर की बारगाह में। कहा बताओ क्या सवाल है? कहा पहला सवाल तो मेरा ये है कि आसमान का ताला क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है कि आसमान की चाबी क्या है? तीसरा सवाल ये कौन सी ऐसी कब्र है जो अपने अंदर दफना करके लिए घूमती रहती है? कहा ये बताओ 5 वो कौन सी ऐसे जानदार चीज़ें हैं जो माँ के पेट से पैदा नहीं लेकिन ज़मीन पर चलते रहते? हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैं जवाब दे दूँ तो ईमान ले आएगा? क्या कहा? कहा अगर मैं जवाब दे दूँ तो ईमान ले आए? कहा ईमान ले आऊँगा। कहा सुन, आसमान का ताला जो है ना वो शिर्क है। बंदा अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, वो चाहे जितने अमाल कर डाले, जितनी इबादतें कर डाले, तपस्या कर डाले, लेकिन उसका कोई भी अमल आसमान के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि वो ताला है शिर्क, वो ताला है शिर्क। लिहाजा आसमान के ऊपर उसके अमाल नहीं जा सकते। कहा चाबी क्या है? कहा चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अगर बंदा सच्चे दिल से अगर कलमा पढ़ लेता है, उसका ईमान और अकीदा होता है, तो कहा ये उसकी चाबी है। अगर रास्ते से चलता हुआ अगर पत्थर हटा देता है तो उसका भी ये अमल अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। कहा आसमान की चाबी क्या है? कलमे तैयबा है, समझे ना। लेकिन कलमे की रट लगाना नहीं, कलमे की रट लगाना नहीं। कलमा पढ़े हैं तो तकाजे भी करना। ये कलमा पढ़ ले तो जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा जब पहुँचे थे ना, हुजूर ने क्या फरमाया? कहा ये मेरी जूती ले जा नालैन सर पे रख, सर पे रख और ले जा करके जो तुझे मिले कह देना मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में गया।
आज ये लोग करते ना ला डगर डगर नगर नगर, समझे ना, बिस्तर गुदड़ी बैग लिए टहलते रहते ना। वहाँ मेरे घर के नीचे में देखता रहता हूँ कैसे कैसे आए कि बैठे रहते हैं, समझे ना, देखता रहता हूँ कहाँ कहाँ से पता नहीं आते, उठा उठा के लाते हैं, समझे ना। बहरहाल अब ये कलमे हजरत अबू हुरैरा को क्यों कहा कि नालैन ले जाओ, हुजूर ये कैसे ले जाओ, जो मेरे कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में चले जाओ, कहा नालैन ले जाओ सर पे रखो। तो शारहीन हदीस फरमाते हैं अबू हुरैरा जा करके बता देना सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत में ना जाओगे, जन्नत में वही जाएगा जो मेरी नालैन को अपने सर का ताज बनाएगा, समझे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर की नालैन को सर का ताज बनाते हैं। ये कहते यार पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, अगर इश्क होता ना तो समझ देता मेरे आका से निस्बत कहीं से भी लाए बस अपना काम हो जाएगा, समझे ना। बहरहाल तो क्या कहा, कलमे तैयबा ये आसमान की चाबी का। तीसरे सवाल का जवाब सुन कि कौन सी ऐसी कब्र है जो अपने दफन होने वाले इंसान को लिए घूमती थी। कहा वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली थी, उनको उसके मछली के पेट में थे और वो हफ्तों 10 दिन 40 दिनों तक वो समंदर में लिए लिए फिरती रही। कहा ये बताओ फिर वो 5 कौन से जानवर हैं, जो 5 कौन से जानदार चीज़ हैं जो दुनिया जो माँ के पेट से नहीं पैदा हुए बल्कि ऐसे पैदा हो जिंदा रहे। कहा सुन, पहले आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा सालेह अलैहिस्सलाम की ओटनी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। इस तरह करके जब जवाब दिया तो 3 जो आए थे उसमें से 2 फौरन कलमा पढ़े और मुसलमान हो गए। और इसके बाद का अच्छा एक सवाल मुझे जो एक रह गया था उसने एक सवाल और कर लिया। कहा ये बताओ वो ना जिन्नात है ना इंसान है, फिर भी वो अपने साथियों को डरा रही थी। भाई डराना तो इंसान और जिन्नात के कम और कौन डराता। कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते वो चूंटी थी, कालत नमलतु या अय्युहन नमल उदखुलू, कहा वो चोटी थी अपने साथियों को कह रही थी, डरा रही थी। कहा बिल के अंदर सुराख में चली जाओ वरना सुलेमान का काफिला आ रहा कहीं तकलीफ ला पहुंचा दे। कहा वो चोटियाँ थी, वो जो तीसरा था वो भी कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। वो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा दिल। अब इल्म की बात करें तो बात चलती चली जाती है, मेरे पास बहुत सारे ज़ख़ीरा हैं इल्म की बात में, या आगे बात निकलती चली जाएगी, समझे ना। लेकिन चंद बातें ज़रूर मैं आपके सामने पेश करूँगा इल्म के हवाले से कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि याद रखो इल्म अम्बिया की मीरास और माल क़ारून की मीरास। इल्म अम्बिया की मीरास, और फरमाया माल खर्च करने से घटता है लेकिन इल्म जितना खर्च करते जाओ उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना बढ़ता चला जाएगा। इल्म के बारे में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने बहुत सारी चीज़ें बयान फरमाई और भी बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े। आप बताएं, आप मुसलमानों के खलीफा थे, तकरीबन 4 साल आपने मुसलमानों के आप अमीर रहे, लेकिन 4 साल में कोई ऐसा काम नहीं, समझे ना। क्योंकि ये जो दौर था ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बड़ा फित्ना फसाद का दौर था। चूँकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 12 साल आपने हुकूमत की, 12 साल में 6 साल बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरे और आखिर के 6 सालों में वो फित्ना फसाद मचा। वो फित्ना फसाद कल मुझे अर्ज़ करना था लेकिन इत्तेफाक ऐसा अर्ज़ नहीं कर पाया कि उस ज़माने के अंदर एक अब्दुल्ला बिन सबाहा करके आदमी था, वो सारे फितनों को पैदा किया था। आज ये शिया मिल रहे हैं, आज जो खारजी मिल रहे हैं, उसी अब्दुल्ला बिन सबाहा की ये देन है, उसी ने पैदा किए थे। एक गिरोह को हज़रत अली की मोहब्बत में पैदा किया और एक गिरोह को हज़रत अली की दुश्मनी में पैदा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अली तू कमाल का है, अली तू कमाल का है। अर्ज़ किया हुजूर क्या? कहा तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। कहा यहूदी जो है ना इतना ईसा से दुश्मनी रखे कि गालियाँ देते थे, और कहा ईसाई हजरत ईसा की मोहब्बत में इतना गुलू किए कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। अरे अली तेरी मिसाल भी यही है। कहा एक इतना गुलू करेंगे, इतना गुलू करेंगे जो तेरे अंदर नहीं होगा उस तक बढ़ा देंगे। आज लोग हजरत अली को माज़अल्लाह नबी कहते हैं, और कहा कुछ ऐसे दुश्मन पैदा होंगे कि अली तुझे मुसलमान भी ना समझेंगे। कहा अली हक पर वही होगा ना जो तुझे बढ़ाएगा ना घटाएगा, वही मानेगा जिस तरह मैं कहता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उसी तरह मानता है जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी पाक को देखें, इतने
कमाल के, अल्लाह अकबर, इतना कमाल आपके अंदर भरा है, इतना कमाल। सब के दौर में आप देखते जाओ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मामला। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इल्म की बात आगे बताऊँ। आप खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, हज़रत असवद के पास गए, कहा हज़रत असवद सुन, अगर ना तू मुझे फ़ायदा पहुँचा सकता है ना नफ़ा पहुँचा सकता है, लेकिन हाँ मैं तुझे चूम इसलिए रहा हूँ कि मेरे आका ने तुझे चूमा है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहने लगे है अमीर अल मोमिनीन, ये जो पत्थर है ना नफ़ा भी पहुँचाता है नुकसान भी पहुँचाता है। बोलो का इस तरह जब अल्लाह ताला ने आलमी अरवाह में सारे मोमिनीन से वादा लिया कि मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो कहा हजर असवद भी था, इसकी आंखें भी थी, मुंह भी था, और ये हजर असवद सबको देख रहा था। और कहा फिर आखिर में वो जो वहाँ वादा हुआ उसका जो पर्चा था, कागज़ था, इसके मुंह में डाल दिया गया, और ये हजर असवद जो है ना सबको देखता रहता, कौन मुझे चूमता है, कौन ईमान वाला है, कौन क्या है, चूमता है। कल फिर अल्लाह ताला इसे ज़बान अता फरमाएगा, और क़यामत के दिन जो इसको चूमा होगा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा अल्लाह इसने मुझे चूमा था, इसकी शफाअत मेरे मैं उसके हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमाएगा और हजर असवद की वजह से बंदा जन्नती बन जाएगा। का नुकसान इस तौर पर कि काफिर के ऊपर गुनाह डाल देता, उसके ऊपर गुनाह नहीं, उसके कोई नेकियां जज्बी नहीं होती, तो वो मौलाए का है। फिर हज़रत उमर ने क्या कहा, अय अल्लाह मुझे ऐसी कौम में ना रखना जिस कौम में अली ना हो। समझे ना, वो हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा। आप देखें आपका निकाह आप जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर फ़ातिमा ज़हरा से हुआ। ये कायनात की सबसे अफजल तरीन औरत है। आप सोचिए जब उसकी नाम में इतनी बरकतें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा अगर कोई मेरा उम्मती अगर मोहब्बत में अपनी बेटी का फ़ातिमा नाम रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम से दूर रखेगा, उस बंदे को जहन्नम से दूर रखेगा। और फ़ातिमा जब कहे ना उसके अंदर यकीनन प्यार आएगा, तो कहा जहन्नम से अल्लाह ताला उसे बहुत दूर रखेगा। और फरमाया एक लक़ब आपका है ज़हरा, फूल। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते, फरमाते थे कि मेरी बेटी फ़ातिमा ये जन्नत का फूल है। बाज़ाब्ता तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के सर को सूंघा करते थे और फरमाया करते थे मेरी बेटी जन्नत के फूलों में से एक फूल है, का इससे खुशबू आती है। और इसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का एक लक़ब बतूल भी है। बतूल का माना होता है लोगों से अलग थलग रह कर, अलग थलग रहना। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा लोगों से अलग थलग रह करके अल्लाह की इबादत में लगी रहती। और इबादत का हाल ये था, अल्लाह अकबर, आप रात में जब सजदे में सर को रखती ना, एक सजदा मुकम्मल ना होता मुअज्जिन अज़ान देना शुरू होता, रब की बारगाह में अर्ज़ करती मौला तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि फ़ातिमा का एक सजदा भी सही से अदा ना हुआ। आप सोचे ज़रा हमारी नमाज़ों का हाल क्या है, 1 मिनट में ना जाने कितनी रकात फटाफट शुरू। याद रखे अल्लाह को ऐसी इबादत कबूल नहीं, अल्लाह को ऐसी इबादत कबूल है, ऐसी इबादत कबूल है जिसके अंदर तमानियत हो, सुकून हो, वरना ऐसी इबादत इंसान के मुंह पर मार दी जाए। तो फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा से 15 साल की उम्र में हुआ। हज़रत अली की उम्र 21 साल और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 15 साल थी। निकाह हुआ और आपके बतन मुबारक से 6 बच्चे पैदा, 3 बेटा और 3 बेटी, हसन, हुसैन, मोहसिन और उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और ज़ैनब। ये 3 बच्चियाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। हज़रत आज हमारे घर की औरतें कहती ना बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है, कहाँ टाइम मिलता, कहाँ फुर्सत मिलती है, इस वजह से नमाज़ें नहीं पढ़ पाती हूँ। क्या अम्मा फ़ातिमा ज़हरा से काम ज़्यादा है? क्या हमारी आज औरतें अपने हाथों से चक्की चला के आटा पीसती? क्या आज हमारे घर की औरतें पानी जाके वहाँ से भर के लाती हैं? क्या करती ज़रा मुझे बताइए? क्या कपड़े हाथों से धुलती? सारी चीज़ें हो गई, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद कि इतना काम थक जाती हूँ इसलिए इबादत ना की। याद रखो माँ फ़ातिमा ज़हरा से ज़्यादा तुम काम करने वाली नहीं हो।
जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह की मददें आती हैं। आप देखो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते एक दिन मैं वहाँ से गुजरा ना, सख्त गर्मियों का दिन था और सारे लोग अपने अपने घरों में थे। देखा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की चक्की चल रही है, हसन हुसैन का झूला झुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये सारी चीज़ों को देखा ना, देखा हज़रत सलमान फ़ारसी हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ किया, हुजूर ऐसे ऐसा मामला था, रोज़े थी। कहा मेरी बेटी रोज़े से थी और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा ताकि मेरी बेटी फ़ातिमा आराम कर ले और फरिश्ते आकर के मेरी बेटी फ़ातिमा का सारा काम करके चले जाए। तो वो फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने, जिनकी शान ये है, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़ातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। आप देखिए अबू जहल की बेटी जब हिजरत करके मदीना आई ना, लोगों ने शोर कर दिया, कहा कि उसका निकाह हज़रत अली उससे निकाह करने जा रहे हैं, हज़रत अली उससे निकाह करने जा रहे हैं। जब हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा को ये बात पता चली तो जाकर अपने आका को अर्ज़ किया, हुजूर को अर्ज़ किया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली सुन लो, जब तक मेरी बेटी फ़ातिमा जिंदा है तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम है, लिहाजा तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। तो हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने 4 साल आपने, और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता, सिर्फ 28 साल की उम्र में आपका विसाल हो जाता। और इसके बाद हज़रत मौलाए कायनात ने कई निकाह फरमाए और इसके बाद आप बजाय मदीना को कैपिटल आप कूफा कैपिटल बना लेते हैं। उसी वक्त हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी या हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था, आज मदीने जो कैपिटल है हटा लिया गया है, अब रहती दुनिया तक कभी मदीना कैपिटल और राजधानी नहीं बन सकता। आज भी आप देख लें, इतना ज़माना गुजरने के बाद आज भी मदीना कैपिटल और राजधानी न बन सकती। चूँकि उधर मामला ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद यहाँ मिस्र से, दिमश्क से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार मुतालबा करे, अली उस्मान गनी के कातिलों से बदला लो। इस तरह दोनों में ज़ाहिरी इख्तलाफ हुआ, लेकिन हक़ अली के साथ था, समझे ना, ज़ाहिरी इख्तलाफ। लेकिन हम इसका ये मतलब नहीं है माशअल्लाह के हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिरी लड़ाई झगड़े थे, समझे ना। जब यही जंग सिफ़ीन हो रही थी, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी, एक बंदा मौला अली की तरफ से था, समझे ना। तो कहा जो बंदा इसको मारेगा जहन्नमी हो जाएगा। तो बंदा कहने लगा आपकी तरफ से लड़े तब भी जहन्नमी, उसकी तरफ, उसी में गुस्से में उसने खुद को खंजर मारा, ख़त्म कर दिया, समझे ना। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 साल आपने किया और इसके बाद वहीं कूफे की सरज़मीन पर हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक 21 रमज़ानुल मुबारक को आप वहाँ से मस्जिद में जा रहे थे। आपकी आदत करीमा थी, जब आप मस्जिद जाते तो आवाज़ देते जाते अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, इस तरह करते करते जा रहे थे। वहाँ से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, इतनी बड़ी दाढ़ी, हाफिज़ कुरान, वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर आता, कहता माँ मुझे इजाज़त दे, आज मैं दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान को कत्ल करने जा रहा हूँ, माज़अल्लाह, समझे ना। वो खारजी था। ये खारजी आपको नहीं पता है तो शॉर्ट में बता दूँ। असल में ये जो अब्दुल्ला बिन, कल मुझे पूरा तफसील से बताना ही था, बोर तो नहीं हो रहे ना, असल में तफसील से ही बताना था लेकिन शॉर्ट में बता दूँ। ये अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था ना, इसने एक गिरोह तैयार किया हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में और कहने लगा कि आप देखो हर नबी का एक खलीफा होता है, हर नबी का एक वसी होता है और हज़रत अली हुजूर से सबसे ज़्यादा करीब थे, लिहाजा हज़रत अली इस चीज़ के हक़दार ज़्यादा हैं। और ये हज़रत उस्मान गनी, अबू बकर, उमर ने ये ज़बरदस्ती छीन लिया है। जैसे आज शियों का अक़ीदा है, ये शिया वही राफ़ज़ी। तो कहने लगे, इस तरह करके गिरोह तैयार किया और गिरोह तैयार करने के बाद जब हज़रत उस्मान गनी को पता चला तो अब वहाँ से भागा, सब जगह भाग जाता था ये अब्दुल्ला बिन सबा, लेकिन अपने कुछ नुमाइंदे तैयार करके चला जाता था। और इसके बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग हुई ना, तो जब ये कहा गया कि हज़रत अमीर मुआविया को एक पैगाम भेजा गया यहूदियों की तरफ से कि अमीर मुआविया आप अली से डट करके मुकाबला करो और जितना तुम्हें पैसा रुपया चाहिए और अगर फ़ौज चाहिए, दौलत चाहिए, सब मिलेगा, सब सारी चीज़ें मिलेंगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त लिखा कि कुत्ते सुन,
ये हमारा और उनका अपना आपस का इख्तलाफ है। जिस दिन ज़रूरत पड़ गई तेरे खिलाफ अली के झंडे के नीचे आकर सबसे पहले लड़ने वाला ये अमीर मुआविया ही होगा। तब और इस इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बहकाया, कहा कि इनसे आप इनका कत्ल करो, इनका ये करो। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे हैं, समझे ना। इस तरह करके मामला जब चले ना तो इसने फिर पैतरा बदला, कहा अली के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब देखो हज़रत अली कैसे अपना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी अली के ख़िलाफ़ बहकाया, अली के ख़िलाफ़ भड़काया। यहाँ तक ये गिरोह ऐसा तैयार किया जिसको खारजी कहा जाता है, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को मुसलमान भी नहीं मानता। आज भी ऐसे खारजी आपको मिलेंगे माज़ल्लाह जो हज़रत अली को मुसलमान भी नहीं मानते। उस ज़माने के अंदर मरवान इब्ने हकम जो था ना, हज़रत इमाम हसन का जब जनाजा ले गया, इतने तीरे मारे गए ना, इतने तीरे कि आपका जनाजे से खून बहना शुरू हो गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, चूँकि उस ज़माने के अंदर खारजी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो था ना, ये वहाँ से आया और आपको शहीद कर दिया। यहाँ पर खंजर जहर से बुझाया, यहाँ पर हलक के अंदर यहाँ मारा। और इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला 21 रमज़ान मुबारक को आप शहीद हो जाते हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के जनाज़ा आप देखिए, हसन हुसैन जैसे बहादुर शख्स, लेकिन डर ये था कि अगर कहीं हमने कब्र बना, इतना वो दुश्मनी रखते थे खारजी कि हज़रत अली को अगर पा जाते ना तो मरने के बाद भी उनके टुकड़े टुकड़े करते, इतनी दुश्मनी आती, इतनी ख़तरनाक। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की लाशे को क्या किया गया, इसमें मैंने कई चीज़ें पढ़ी। एक तो ये कि रात के अंधेरे में आपको ऊँटनी पर आपके जनाजे को रख दिया गया, वो कहाँ ले गए अल्लाह बेहतर जाने। एक रिवायत ये कि सुनसान जंगल में ले जाकर के दफना दिया, कई रिवायतें मिलती हैं। और इसके बाद ये कि जंगल में जब ऊँटनियाँ ले गए उनके लाशे को गायब कर दिया गया। और एक ज़माने में फिर एक आदिल बादशाह आया, तो बादशाह शिकार कर रहा था, वहाँ शिकार के वक्त जब वो जंगल में पहुँचा ना, वहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़ार कब्र थी वो ज़ाहिर हो गई। और वो बादशाह मोहब्बत करने वाला था जो जिसे आज नजफ़ कहते हैं, वहाँ पर उसने शानदार कब्र वगैरह बनवाया। कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पाक को पढ़े, चूँकि अब 4 दिन बाकी रह गए, वक्त अब चूँकि कम रह गया है और बड़ी तेज़ी के साथ हमें अपना सफ़र पूरा करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का के कुछ कौल हैं, दिमाग में लेकर के जाएँ तो आपको अच्छा लगेगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। हज़रत अली फरमाते रिस्क और मौत का खौफ ना कर, ये सिर्फ इख्तियार अल्लाह को है, बेशक न कोई तुम्हारा रिस्क छीन सकता है और ना ही तुम्हें कोई मौत दे सकता है कि नहीं। रिस्क और मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है। तुम्हें दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि इंसान को जन्नत है जो आखिरत जो है ना मेहनत से मिलेगी और दुनिया किस्मत से मिलेगी। जो आपकी किस्मत में है वो मिल के रहेगा। लेकिन इंसान कितना नादान है कि दुनिया के लिए मेहनत करता है और आखिरत को किस्मत पे छोड़ देता है कि नहीं। आखिरत को क्या करे, देखोगा यार जो होगा। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपकी कौल यकीनन जब पढ़ते जाओ ना तो लगता है कि और भी पढ़े। फरमाते हैं इंसान अपने ख़यालात से जितना परेशान होता उतना अपने मामलात से परेशान नहीं होता है ना। ख़यालात से कि नहीं यार ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो, मतलब पिक्चर कहाँ से पहुँच जाती है और इसके बाद में पता चलता कुछ था ही नहीं। तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं इंसान अपने ख़यालात से ज़्यादा परेशान होता, मामलात से कम। और आगे फरमाते हैं हाँ दुनिया में, आखिरी नसीहत, दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत है मगर खूबसूरत दिल नहीं है ना। क्या कहा? खूबसूरत दिल, यानी जो अच्छे मिजाज का हो, अच्छा इंसान हो, अच्छे सारी चीज़ें, समझे ना। कहा खूबसूरत दिल वाले तलाश करो, खूबसूरत चेहरे वाले नहीं, समझे ना। इसलिए कि खूबसूरत चेहरे वाले तो सभी मिल जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन खूबसूरत दिल वाले बहुत कम मिलेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।